A very good evening to all of you, my dear kids. I am Manisha Das on behalf of eTuition family. Welcome you all to today's class. Let me remind you that our eTuition family is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to be a part of our family. So my dear class 8 students, today we are at the part 2 of our lesson, reaching the age of adolescence. And in today's part, we will be discussing about what are secondary sexual characters. Right? So you may be thinking, what are secondary sexual characteristics? So in today's part we will be discussing about it in lot of details. So let's move ahead to today's class. So what are the points we are going to discuss today? We will be discussing about the secondary sexual characteristics, hormones, endocrine system, reproductive phase and sex determination. So let's see that what are these things we will be discussing. First comes secondary sexual characters. So this is basically the features which help to distinguish the male from the female are called secondary sexual characters. यानी कि ऐसे कैरेक्टर्स जिसको देख के हम एक मेल और फीमेल के बीच में क्या कर सकें, उनके डिफरेंस हमें पता लग सके, कि हम देख के पता लगा सके कि ये मेल है और ये फीमेल है. ओके, सो व्हाट आर द कैरेक्टर्स? सी, मेल वॉइस बिकम मच लोअर और ब्रेक्स एट प्यूबर्टी, राइट. और फीमेल में क्या होता है? ब्रेस्ट्स ग्रो एंड निपल्स एनलार्ज. हेयर स्टार्ट्स टू ग्रो ऑन चेस्ट, फेस, अंडर आर्म्स एंड इन प्यूबिक एरिया. मेल में. फीमेल में क्या होता है? अंडर आर्म्स एंड प्यूबिक एरिया में हेयर यूज टू ग्रो. ना बॉडी बिकम्स मोर मस्कुलर इन केस ऑफ मेल. फीमेल में क्या होता है? हिप बिकम्स वाइडर, वेस्ट पोर्शन बिकम्स वाइडर. ना पेनिस बिकम्स लार्जर इन केस ऑफ मेल. इन केस ऑफ फीमेल यूटेरस एंड वजाइना बिकम लार्जर. नाउ male testes start to produce sperm and in female ovaries start to release egg and period begins. It means menstruation starts. So what is menstruation? In today's part we will be discussing. Next comes, see, hormones. What are hormones? So whatever the changes which will occur during our adolescence are controlled by these hormones. So hormones are basically the chemical substances and these are secreted from our endocrine glands or the endocrine system. You can see in this picture, these are the endocrine system. Okay, now see, hormonal changes. The male hormone or testosterone begins to be released by the testes at the onset of puberty. So जैसे ही puberty start होगी, testosterone will be released. Okay, this causes changes in boy about which you have just learned. जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि कौन कौन से सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगे. दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन. एंड इन फीमेल, व्हेन द प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन. तो फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा जिसके वजह से द ब्रेस्ट विल डेवलप एंड मेल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट. And the production of these hormones is under the control of another hormone. वो क्या है? कौन सिक्रेट करता है? Pituitary gland, which is called as our master gland, right? So role of hormones in initiating reproductive function. See, endocrine glands release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called target site. तो जिस जगह पे जाके वो हार्मोन पहुंचता है उसे क्या बोला जाता है? टारगेट साइट. So the target site responds to the hormone. और जो हार्मोन होगा उसी के हिसाब से उसके टारगेट साइट में ही हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे. एंड देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी. बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. द टेस्टिस एंड ओवरी सीक्रेट सेक्स हार्मोन, जिसकी वजह से प्यूबर्टी में इतने सारे चेंजेस होते हैं. These hormones are responsible for the male and female secondary sexual characters. So hormonal control. See, the sex hormone are under the control of किसके अंडर में है? Pituitary gland के. And the pituitary secretes many hormones, one of which make ova mature in the ovaries and sperm from the testes. Okay, now see, तो कैसे काम करता है? हॉर्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरी. तो हार्मोन क्या करेगी? टारगेट साइट में पहुंचेगी. किसकी हार्मोन? पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन पहुंचेगा टारगेट साइट, जैसे कि टेस्टिस और ओवरी में. ओके, और वो क्या रिलीज करवाएंगे वहाँ पे? टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज में एस्ट्रोजन. उसके बाद क्या होगा? रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी. फिर ये तो हार्मोन रिलीज होके फिर डिफरेंट पार्ट्स में जाके पहुंचेंगे, यानी कि टारगेट साइट. ओके, एंड स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. फिर प्यूबर्टी में जितने सारे चेंजेस होंगे दे विल वॉक अकॉर्डिंगली.
Now, reproductive phase of human life. Interesting thing is, in females the reproductive phase of life begins at puberty. 10 to 12 years of age में start होता है and generally lasts till the age of approximately 45 to 50. Okay, so reproductive phase of human in see, the ovum begins to mature within the onset of puberty. Okay, ओवम जो है वो रेडी हो जाती है जब द गर्ल इज इन द फीटस स्टेज, लेकिन इट स्टार्ट्स टू मैच्योर व्हेन द गर्ल एंटर इनटू प्यूबर्टी. ओके, सो वन ओवम मैच्योर एंड इज सेड टू बी रिलीज्ड बाय द ओवरी वंस इन अबाउट 20 to 30 days, जो कि हमें पता है ऑलरेडी 1 month में अल्टरनेटिवली ओवम विल बी रिलीज्ड फ्रॉम ईच ओवरी. नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटरस, क्योंकि इफ द फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, यूट्रस को तैयार रहना है टू कैरी द बेबी, राइट. सो द यूट्रस विल ऑल्सो मेंटेन इट्स थिकनेस सो दैट it can hold a baby, right, in case it is fertilized and begins to develop. This results in pregnancy if fertilization does not occur. अगर fertilization ना होता है, the release day क्या करेगी, वो thickening line of the uterus क्या होगी, it will shed off, it will rupture, and what will happen, through blood. This causes bleeding in women which is called as menstruation. Okay, इसी को menstruation बोला जाता है. So menstruation occurs once in about 28 to 30 days. Okay, so menstrual cycle is 28 to 30 days. First menstrual flow जब start होता है, the starting of a menstrual flow is termed as menarche, and at 45 to 50 years of age में menstrual cycle stop हो जाता है, which is called as menopause. The stoppage of menstruation is called as menopause. And initially menstrual cycle may be irregular, starting में irregular हो सकता है, it takes time to become regular, right. So the reproductive life of a woman lasts from menarche to menopause. In shortcut, right, from menarche it means starting and menopause means stoppage. So see, the menstrual cycle is controlled by hormones, right. So the cycle includes maturation of the egg, its release and thickening of the uterine wall, and it breaks if pregnancy does not occur, right. So in case the egg is fertilized, egg fertilize हो जाएगा तो क्या होगा, zygote will be formed and it will divide rapidly to make it will get embedded in the uterus and further development of the baby, right. Yes. Now reproductive phase, लेकिन the capacity for maturation and production of gametes last for a much longer time in males than female. जैसे कि हमने देखा कि females में after certain period of time the reproductive phase ceases or stops, लेकिन male में क्या होता है, it is a lifetime process, they can produce their sperm throughout their lifetime, right. Okay. Now how is the sex of the baby determined? We know that fertilization होगा, zygote formation होगा, after that it will develop into a baby. But whether the baby is a boy or girl, यही तो सबसे interesting बात होता है ना आज के society में. They are so much excited to know what is the sex of the baby, right? So how it is determined? See, inside the fertilized egg or zygote is the instruction. उसी के बीच में खजाना छुपा हुआ है, राज की बात है, whether it is a male or female inside the zygote. Okay, so this instruction is present in the thread like structure called as chromosomes in the fertilized egg. So zygote के अंदर कौन है, chromosome. So the chromosomes are present inside the nucleus of every cell, and हमें ये पता है 23 pairs of chromosomes are there, और उनके बीच में जो न्यूक्लियस है उसी में छुपा हुआ है ये राज. So how is the sex of the baby determined? See, तो 22 पेयर्स, ओके, 22 पेयर्स क्या है, ऑटोसोम, और 1 पेयर इज क्रोमोसोम. ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा ना, वेट, 23 पेयर्स होते हैं, टोटल ओवरऑल क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 होते हैं वेजिटेटिव एंड सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम जिसे बोला जाता है वेजिटेटिव, एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम. ओके, सो देखो 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर सेक्स क्रोमोसोम्स, जो कि एक्स एंड वाई होते हैं, राइट. सो ए फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम, यू कैन सी हियर, फीमेल के पास क्या है, एक्स एक्स होता है, व्हाइल ए मेल हैज़ एक्स एंड वाई, मेल के पास एक्स वाई होता है. तो जैसे कि हमें पता है कि दे विल बिकम हाफ एंड कम, वो हाफ होके आएंगे, तो स्पर्म के पास कोई ऑप्शन, 2 ऑप्शन है, राइट, वो एक्स हो सकता है या फिर वाई हो सकता है. लेकिन गर्ल के पास क्या होगा, फीमेल के पास एक्स एक्स, या तो एक्स आएगा या फिर वही एक्स आएगा. तो स्पर्म के पास कैपेसिटी हो एक्स का हो सकता है, वाई का हो सकता है. अगर ये एक्स वाला स्पर्म एक्स वाले एग के साथ फर्टिलाइज होता है तो क्या बनेगा, एक्स एक्स, यानी कि वो गर्ल बन जाएगा. अगर वाई वाला स्पर्म एक्स के साथ फ्यूजन करता है तो एक्स वाई, वो बॉय बन जाएगा.
So the gametes or egg or sperm have only one set of chromosome. The unfertilized egg always has one X chromosome. जैसे कि मैंने आपको बताया. And the sperms are of two kinds. क्या क्या थे? One kind has X chromosome, one kind has Y chromosome. When a sperm containing X chromosome, अगर sperm X है, okay, fertilize the egg, the zygote would be have 2x, जैसे कि यहाँ पे हुआ, right? ये हमारा X और ये आया हमारा X, तो XX क्या हुए? गर्ल हो गए, ओके, जैसे कि यहाँ पे भी X और ये X क्या हो गए? गर्ल हो गए. लेकिन इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स वाई, अगर इसने वाई दिया और फीमेल के पास तो एक्स ही होना है, तो क्या बन जाएगा? बॉय बन जाएगा. ओके, द जाइगोट वुड डेवलप इनटू ए मेल चाइल्ड. सो सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी. क्योंकि फीमेल के पास क्या है? सेम है, राइट? एक्स एंड एक्स. सो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है चेंज करने का. बट द मेल हैज़ एक्स और वाई. सो द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर ओनली. The belief that the mother is responsible for the sex of a baby is completely wrong. क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा गांव में ना किसको ऐसे मतलब ब्लेम करते हैं, टू द फीमेल ओनली. सो टू ब्लेम हर फॉर दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड. अरे गाली देना है, ब्लेम करना है तो अपने बेटे को बोलो. टू द मेल यू हैव टू टेल बिकॉज ही इज द ओनली रेस्पॉन्सिबल पर्सन. बट देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग दैट, राइट? मेल एंड फीमेल बोथ आर सेम, राइट? बॉयज एंड गर्ल बोथ आर सेम. आफ्टर ऑल दे आर अलाइव. So now is endocrine glands. So unlike exocrine glands क्या करते हैं बच्चों? They secrete something. The chemicals which they secrete वो क्या करते हैं? डक्ट, पाइप के थ्रू बॉडी में वो क्या करते हैं? उसे ट्रांसपोर्ट करती हैं. लेकिन एंडोक्राइन क्या करेंगी? डायरेक्टली दे विल सेंड इट टू द ब्लड स्ट्रीम. These endocrine glands belongs to the body's control system. ये पूरे बॉडी का कंट्रोल करती हैं, हार्मोन सिक्रेट करती हैं और सेलुलर टिश्यू को फंक्शन करने के लिए हेल्प करती हैं. और कुछ जो ग्लैंड्स हैं वो सिर्फ मेल या फिर फीमेल में होती है, लाइक मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज. नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पहला आता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड. एनक्लोज्ड डीप विद इन द स्कल. द पिट्यूटरी ग्लैंड इज द साइज ऑफ ए पी. दिख रहा है कितना छोटा सा है पिट्यूटरी ग्लैंड. It hangs on a stalk at the base of the brain. ये देखो कैसे झूला हुआ है इसके सहारे. It consists of an anterior portion that produces hormones and posterior portion that has many neural links. Okay, so this gland is regarded as the master gland. इसे master gland बोला जाता है क्योंकि ये दूसरे endocrine glands को कंट्रोल करता है. जैसे adrenal gland हो गए, thyroid gland हो गए, ऐसे दूसरे endocrine glands को ये कंट्रोल करता है. The pituitary gland stimulates the adrenal gland to secrete cortisol. तो pituitary gland किसको बताएगी? adrenal gland को क्या secrete करने के लिए? cortisol. स्टीरॉयड हार्मोन जो कि क्या करती है? बॉडी में मेटाबॉलिज्म में ब्लड प्रेशर को क्या करती है? कंट्रोल में रखती है. द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो सीक्रेट प्रोलैक्टिन जो कि क्या करती है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में भी हेल्प करती है. नेक्स्ट आता है हमारा थायराइड ग्लैंड. द थायराइड ग्लैंड कैन बी फाउंड इन द फ्रंट ऑफ द नेक, जैसे आपको दिख रहा है. Now it sits down in the throat between the windpipe. We can see in this diagram. Brownish red and it has blood vessels colored through it. Don't look at this color ताकि आपको अच्छे से पता चले मैंने ये वाला पिक्चर डाला. But it is brownish red color. It secretes hormone जिसको क्या बोला जाता है? थायराइड हार्मोन बोला जाता है, जिसमें T3 और T4 टाइप इज मोस्ट प्रोमिनेंट और ये क्या करते हैं? बॉडी के मेटाबॉलिज्म को डिफर कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है पैराथायरॉयड. ये जो 4 बटन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड. द पैराथायरॉयड ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 4 स्मॉल ग्लैंड दैट आर लोकेटेड बिहाइंड द थायरॉयड इन द नेक. दे इन्फ्लुएंस द कैल्शियम लेवल को ये कंट्रोल करती हैं बॉडी में. समटाइम्स व्हेन द ग्लैंड प्रोड्यूसेस एक्सेस पैराथायरॉयड हार्मोन, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा. बोन ब्रिटल हो जाएंगे, किडनी स्टोन हो जाएंगे. नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल कहाँ पे? किडनी के ऊपर. द एड्रिनल ग्लैंड सिट्स अटॉप द किडनीज एंड आर नो लॉन्गर देन ए वॉलनट. और क्या है? दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस ओवर 150 हॉर्मोन्स दैट रेगुलेट डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी. तो ये क्या करती है? कौन सा हार्मोन जो मोस्ट फेमस है? एड्रेनालिन, जो क्या करती है? फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स. यानी कि जैसे कि अचानक से आपके सामने एक सांप आ गया, आप या तो वहाँ पे खड़े रहोगे या फिर वहाँ से भागोगे. तो सडन रिएक्शन के लिए कौन काम करता है? हमारा एड्रेनालिन हार्मोन. इन अदर वर्ड्स देयर इज अ स्ट्रेस हार्मोन दैट हेल्प्स द ऑर्गेनिजम्स टू इधर फेस अ डेंजरस सिचुएशन और टू अवॉइड इट. ओके, कैसे करता है? ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देगा, ब्लड का सप्लाई बढ़ा देगा,
एंड डायलेटिंग द प्यूपल्स, प्यूपल्स का आइज के साइज क्या कर देगी, बढ़ा देगी। इंक्रीजिंग द हार्ट रेट बढ़ा देगी। टाइटनिंग द जॉ मसल्स, कभी कभी ऐसा होता है ना आप डर जाते हो तो क्या करते हैं, आपका पूरी बॉडी काम नहीं लगती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस एड्रेनालिन। नेक्स्ट इज पैनक्रियाज। सी पैनक्रियाज इज हेट्रोजेनस ऑर्गन, इट मीन्स ये एंडोक्राइन भी है एक्सोक्राइन भी है, राइट। So it is roughly 6 inches long and rather flat. The pancreas has two primary roles to play. एक होता है डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करेगी, दूसरा होता है हार्मोन्स लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन का जो बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल्स जो पैनक्रियास के हैं वो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं और किस में हेल्प करती है, ब्लड के शुगर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में। और क्या करते हैं, एज वी आर ऑल एवर द लैक ऑफ इंसुलिन क्या कर सकती है, डायबिटीज़ करवा सकती है, टाइप 1 टाइप 2। लेकिन जो ग्लूकागॉन है वो क्या करती है, जो अल्फा सेल्स है पैनक्रियास वो सिक्रेट करती है। इनका काम क्या है, जब ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तब ये काम करेंगे, लेकिन इंसुलिन जब ज़्यादा हो जाए तब ये काम करेंगे। लैक ऑफ ग्लूकागॉन लीड्स टू हाइपोग्लाइसेमिया, एक डिजीज है। सो अनदर की डिफरेंस बिटवीन टू इज इंसुलिन कब एक्टिव होगा, जब ब्लड शुगर लेवल हाई होगा, और ग्लूकागॉन कब एक्टिव होगा, जब क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल लो होगा। Now next is gonads. Gonads means sex organs. So some glands are specific to males and females. Like जैसे हमने पढ़ा था फीमेल में ovary and male में testes. For instance, the ovaries are specific to females and are located in the pelvic cavity, while testes are specific to males. Ovaries produce estrogen जो कि फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन, दैट इज द सेम फंक्शन ओनली। So also it results in increased muscle mass and body hair, right? And next is pineal gland. आपको दिख रहा है कि छोटा सा स्पॉट दिख रहा है, that is called as pineal gland. It is located between the two halves of the brain. आप अगर सामने से देखोगे ब्रेन के दो हाफ के बीचों बीच ही है, इसे थर्ड आई भी बोला जाता है। Due to its location in the brain and its connection with light. यानी कि ये क्या करता है, बॉडी में जो इंटरनल क्लॉक है उसे एक्टिव बनाता है। यानी कि ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, जो क्या करता है, अंधेरे में हमें नींद आती है, राइट। रात को हम सोते हैं, दिन को जागते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मेलाटोनिन। ये क्या करता है, स्लीप और वेक साइकिल को मेंटेन करवाता है। इट्स इफेक्ट आर नॉट रियली नोटिसेबल अनलेस द इंडिविजुअल इज स्लीप डेप्राइव्ड। ऐसा इसीलिए होता है, देखिए कोई लोग हैं ना वो नाइट शिफ्ट करते हैं, इसलिए जब रात को मतलब काम करते हैं ना तो दिन में उन्हें नींद नहीं आती और कैसा ना थका थका महसूस हुआ होता है। अगर आप अच्छे से एक रात ना सो तो 2-3 दिन तक आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी, फिर धीरे धीरे आप हैबिचुएट होने लगोगे, देन इट विल अगेन कैन बी एडजस्टेड। So with this we have completed this part, and now quote is, don't let the life end before it even begins. Save girl child. तो बच्चों ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन हमने पढ़ा ना, तो एक्चुअली इट इज़ बैन बाय द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में ऐसा मतलब पुराने ज़माने के लोग मानते हैं कि दैट गर्ल आर बर्डन, ओके, गर्ल्स आर बर्डन। तो वो क्या करते थे, दे यूज टू, वो सिर्फ बॉयज़ को ही सपोर्ट करते थे। तो गर्ल चाइल्ड को क्या कर देते, डस्टबिन में फेंक देते थे, मार देते थे, या फिर पेट में ही व्हेन इट इज़ डेवलपिंग, वो अगर उन्हें पता चल जाता है कि गर्ल इज़ देयर इनसाइड द वूम, दे यूज टू किल देम। तो इसीलिए बोला गया है कि सेव गर्ल चाइल्ड, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। So with this I would like to request you be a part of our eTuition family. Don't forget to watch, like, share and subscribe to our channel. Till then, stay safe, stay happy and thank you.